Well, how it all started, it happened in college. I belong to Haryana, a very small village called Kannauр. और जब मैं पहली बार मुंबई आया ग्रेजुएशन करने के लिए और उस वक्त कुछ नाटकों में पार्टिसिपेट कर लिया तो मुझे बेस्ट एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रिप्ट ये सभी अवार्ड्स मिल गए तो अचानक लगा मुझे सब करना चाहिए। हालांकि उसके पहले मैं पायलट बनना चाहता था। इनफैक्ट आई वाज सेलेक्टेड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ पायलट एंड सेस्ना 152A मैंने 1 घंटा 40 मिनट मेरा फ्लाइंग आवर था। ज्वाइंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट और फिर मुझे ज़्यादा आनंद जिसे कहते हैं ज़्यादा मज़ा आ गया नाटकों में एज कम्पेयर टू फ्लाइंग। सो आई डिसाइडेड टू क्विट फ्लाइंग एंड फैमिली सपोर्टेड मी। दिस वाज द बेस्ट पार्ट। So this is how I started. Now then I joined IPTA, Indian People Theatre Association, जहाँ से समझिए मेरा पूरा बेस तैयार हुआ एक तरह से। और फिर मैंने दिनेश ठाकुर साहब, अंक और नाट्यशाला, भूमिका, अलग अलग थिएटर ग्रुप्स में काम किए। Then I decided to start this very own theatre group called दर्पण, जो दर्पण थिएटर ग्रुप नाम से था। बाद में हम क्योंकि डॉक्यूमेंट्री और फीचर फिल्म्स में आ गए तो eventually turned into दर्पण Theatre and Cinearts. So this is how it started. Theatre is something which I always wanted to do. Theatre gives you that platform as an artist to get into the skin of the character, into the soul of the character, as any other platform like TV or even film. They really can't, somehow give you that platform to experiment upon yourself. As an artist, as a creator, somehow I identify with theatre a lot. It had been a great journey so far. We have performed all over India. We have performed even out of India. And last play I directed was produced by Mr. Atul Agnihotri, and Sajid Wajid gave music for the first time in a play, and Wajid उन्होंने title song भी गाया था। I feel blessed to have great artists on board whenever I wanted to work. किसी भी तरीके से जो ट्रांसफॉर्मेशन है थिएटर से टीवी या फिल्म की तरफ, it was never planned. Eventually जब आप इतना थिएटर करते हैं रेगुलर, आप ऑल्टरनेट वीकेंड पे स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, खास तौर पर मुंबई शहर में, तो ब्राइट चांसेस बन जाते हैं that you will be noticed. And in case you are a bit of talented, तो जल्दी notice हो जाते हैं। तो it happened fortunately with me. I won't say I was that talented, but people were good enough to look something into me, and then they offered me some TV. राज नाम का पहला मेरा daily soap था, which was a thriller का format on Sahara, and it had highest TRP and so on. So I did wrote some 17 series. Eventually films happened, and I was waiting for that. So far blessed and I'm fortunate to continue that way. ISKCON में हमारा नाटक था और जो फिल्म के डायरेक्टर राइटर हैं वो शो देखने आए थे और उन्होंने शो के बाद बैक स्टेज पर आकर थोड़ा अप्रिशिएट करते हुए कहा कि they want me to portray this lead character and I wanted to know the script, क्योंकि essentially जो राइटिंग है, स्क्रिप्ट है, कैरेक्टर है, वही पूरी तरह से इंस्पायर करता है किसी भी आर्टिस्ट को कि व्हाट ही वांट्स टू डू। फिर मुझे बहुत अच्छी लगी स्क्रिप्ट, देन आई साइंड द फिल्म एंड देन डिड द फिल्म। वसुंधरा दास इज देयर इन दैट फिल्म एंड वी हैव एंसेंबल कास्ट, सभी थिएटर की कास्ट है ज़्यादातर। इवेंचुअली एज अ डायरेक्टर मेरी पहली फिल्म रही द आर्ट इज विद इन। It was a subject which was never ever made earlier on earth, not only in India, and nobody had tried that subject, that inner psyche of a stage actor, and how two actors portray 22 characters in a one-night story.
It's only one location and two actors, and I happen to, of course, portray one of them, and I happen to portray 17 characters out of those 22 characters. I was a bit lucky to complete the film as I wanted, and I had a great team. The best part about doing theatre is the people, the artists, the creators, those who are working with you. They are not like so-called professional, but they are like family. Theatre is like a family, and हमारे थिएटर ग्रुप की ही ताकत थी कि हम बहुत कम रिसोर्सेज या बहुत कम बजट्स होते हुए भी फिल्म को बहुत अच्छे ढंग से बना पाए. और आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑल द टीम सो फार. आई हैव वर्कड विद एनीबॉडी, हैव बीन ग्रेट हेल्प इन एनी ऑफ माय प्रोजेक्ट्स. एंड आर्टिस्ट दिन खास तौर पर मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि पहली फिल्म है एज अ फिल्म मेकर. और इसमें लिटरली हमारे थिएटर ग्रुप के एक्टर्स ने हर तरह का काम किया इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट में हेल्प करने से लेकर, प्रोडक्शन में हेल्प करने से लेकर, यहाँ तक कि आर्ट डायरेक्शन या म्यूज़िक या एनीथिंग. तो थिएटर ग्रुप होने का हमें बहुत ज़्यादा एक तरह से लाभ मिला कि हम लोग बेहतरीन ढंग से फिल्म को बना पाए. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ममता भाटिया, नीता व्यास अय्यर, खनन अय्यर, and lot many names. So we started making films due to them. Yes, wearing actor, writer and director's hat at the same time, and essentially editor also. It was not a intentional decision कि मैं ही करूँगा सब कुछ, बल्कि ये हुआ कि because we had very less budget, because this is my baby, my theatre group's baby, so we decided, we always vote for things, and we decided to go ahead and learn everything of the films in terms of technology, and then go into the floor and then do the things by ourselves. And fortunately it happened. Just The Artist Within is the first film of so-called Bollywood which is being transferred from digital to a cinemascope. When we sold the first film, The Artist Within, we had comfortable amount of money to produce another film. So we decided to go ahead with a comedy this time. That's a family comedy. It's called गलती से मिस्टेक हो गई. चुपचाप बताओ, और कितने साथी हैं तुम्हारे? चुपचाप कैसे बताएं? And we made this film in a very constrained budgets. उसके बावजूद हम लोग इसको बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से बना पाए because all the actors were from theatre. और ख़ास तौर पर उनके साथ काम किया हुआ था, बहुत ही कंफर्टेबल जोन था. डेफिनेटली फिल्म मेकिंग में जो तकलीफें सभी को आती वो हमें भी आई थी, बट ड्यू टू द टीम इट वाज अ ग्रेट सपोर्ट, एंड अगेन वी मेड अ फिल्म कॉल्ड गलती से मिस्टेक हो गई. Then we made another film called गांधी की ज़मीन पर. मिट्टी तो मिट्टी है आखिर, जलाई जाए या दफनाई जाए. जो मिट्टी से बने हैं हम, तो किसी काम तो लाई जाए. ये एक ख़ास तौर पर एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी जिसमें हमारी टीम ने ये निश्चय लिया कि हम किस ढंग से थिएटर और फिल्म के माध्यमों को आपस में जोड़ सकते हैं. एसेंशियली इट वाज सपोज्ड टू बी अ वन टेक फिल्म. एक जर्नलिस्ट विद हिज कैमरामैन, दे हैपन टू गेट कॉट इन द मुस्लिम राइट्स, और जो कुछ भी सिनेमाटोग्राफर जो कैमरामैन है, जर्नलिस्ट जो कुछ भी वो रिकॉर्ड कर रहा है, दैट इज द फिल्म ऑल अबाउट. सो इट इज सपोज्ड टू बी लाइक वन टेक फिल्म थ्रू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ जर्नलिस्ट कैमरामैन. और उसमें हम एक पूरी कहानी कह जाते हैं which talks about humanity being the supreme religion, which talks about how हम बाहरी तौर पर किसी भी तरीके के लिबास में हों, लेकिन आंतरिक तौर पर हम इंसान हैं, चाहे हमें बुर्का पहना हो या हमें भगवा कुछ पहना हो, या हमारी दाढ़ी बड़ी हो या हमारी चोटी बड़ी हो. मिट्टी तो मिट्टी है आखिर,
जलाई जाए या दफनाई जाए, जो मिट्टी से बने हैं हम, तो किसी काम तो लाई जाए। ये मौत शोर से नहीं टूट सकता। कुछ सोचो यार, कुछ सोचो। Since I was doing theatre for quite a long time and had jumped with our theatre group into a film production house as well, so some people started approaching us कि हमारी फिल्म बनानी। इसी ढंग से Take It Easy नाम की जो फिल्म हमारी चौथी फिल्म है, which is supposed to be our first released film। हर एक को लगता है कि मेरा बच्चा सबसे बेस्ट होना चाहिए। ओलंपिक्स में दौड़ेगा मेरा बेटा। हमारा एडमिशन मम्मी पापा क्यों तय करते हैं? किसी भी कॉलेज में 95% के नीचे एडमिशन नहीं मिलता है। बी सीरियस। पलकों में अधूरा सा प्रतियोगी होंगे तो प्रतियोगिता में एक सुरमई सपना कुछ यूं इस तरह It's a case of parental pressure. छूट के यूं टूट के बिखरा ये हम क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? कंपटीशन, कंपैरिजन। सपना It is about peer pressure, it is about parental pressure, how in metro cities कैसे माँ बाप जो हैं वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली इस ढंग से एजुकेट हो गए हैं, which is not that positive, कि वो अपने बच्चों को में अपने सपने देखना चाहते हैं और उनको कहीं ना कहीं इंस्टेड ऑफ गुड ह्यूमन बीइंग बल्कि सुपर ह्यूमन बीइंग बनाने लगे हैं कि वो डांस क्लास भी करे, कराटे भी जाए और फाइट भी करे, 90% प्लस मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। तो ये इस एटीट्यूड को कहीं ना कहीं उजागर करते हुए कि कैसे ये अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड पर असर डाल सकता है, वो भी नेगेटिवली, इस तरह के टॉपिक पर फिल्म है जिसके हमें रिव्यूज़ बहुत अच्छे मिले, 3 स्टार, 3.5 स्टार, 4 स्टार तक मिले। एंड फिल्म could survive in cinema for two weeks. Nowadays it's a bit difficult to survive even 4 days without a star also. Fortunately we had very good music in the film. Sonu Nigam साहब, शंकर महादेवन जी, then जावेद अली, कीर्ति सागठिया एंड स्नेहा पंत। अच्छा म्यूजिक हुआ है फिल्म का, एंसेम्बल म्यूजिक डायरेक्टर्स थे। फिल्म को बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक मिला है इन नासिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। वी हैव वन दादा साहब फाल्के जन्मभूमि पुरस्कार फॉर द फिल्म, and we are lucky to have the best VFX also for this film called Take It Easy. Yes, I wrote, edited and directed the film. फिल्म में एंसेम्बल कास्ट थी, दिग्गज एक्टर थे थिएटर के। वी हैड विक्रम गोखले जी, वीरेंद्र सक्सेना जी, अनंत देसाई जी, सुलभा आर्या जी, एंड राज जुच्छी, जय सिंह गुप्ता। वी हैड दीपानिता शर्मा एंड सुप्रिया, Vijay Kashyap ji. So we had good ensemble cast, all good actors. So it was not that difficult to work with such great actors, those who understand theatre and TV and films, all medium. So it was very, very comfortable working with them. एसेंशियली जितना भी हमारे फिल्मों में झलकता है या हमारे नाटकों से झलकता है, वो सभी कहीं ना कहीं कंटेंट बेस्ड है, जहाँ पर व्हाट वी टॉक अबाउट इज लाइक दर्पण इज टुडेज socially relevant strand of our society, that's called the mirror, the darpan, and we tend to do in our all productions, whether it be TV or film. And we are blessed to have good audience, we are blessed to have good reviews, whatever we are making so far. Next जो projects हैं वो काफ़ी मेरे दिल के करीब हैं। मैंने कुछ और स्क्रिप्ट्स पर काम किया है। एक फिल्म है तेरे इश्क में, वन इज कॉल्ड मिस्टर संपत का मरोगे, दैट्स अ डार्क कॉमेडी, एंड एक 3D हॉरर पे भी मैंने स्क्रिप्ट कंप्लीट की है। सो दैट वे वी हैव गुड किटी इन आवर हैंड to deliver something, and we are working on those projects at this point of time. You know how a team is so essential when you start doing a play or you start thinking about making a film.
It's absolutely a teamwork. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले खड़े हो सकते हैं और अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं, तो आप एक ख्वाब देख रहे हैं. Practically, एक नाटक या फिल्म, you have to have your good team with you. Your cinematographer, your editor, your assistants, your art director, the writer, or even light boy or sport boys. So ये पूरी तरह से टीम वर्क है, and I feel really blessed कि मुझे हमेशा एक अच्छी टीम मिली है. I really feel blessed to have people, those who really come forward to support you in completing your dream, which is a rare phenomena when you have less budgets also. You know, you have to somehow work in, as a captain of the ship, as a leader, you have to work in such an environment wherein everybody feels that this is something happening for them. This is something, a family is doing something, it is something, everybody is united. This is how we have done all our plays. Well, if I can state this, that I have directed 18 plays and I have acted in some 27 plays and have written, edited and directed 4 films. So this credit is not mine, of course. This credit is of the team, and I really salute my team and I really love them all.